class we discussed about the supplier relation, that what is the supplier relation, why we need to maintain a harmonious relation with the suppliers, and what are basically reasons or issues that can be arise between the supplier and the retailer. So we already discussed about all these points. In today's class, we are moving toward the new topic, and that is a store layout and visual merchandising. What is the meaning of store layout and why it is one of the important decisions which is taken by the retail store. We can see there are so many unorganized retail stores which is looked very, बोल सकते हैं ना कि बहुत ही ज़्यादा आप देखिएगा कि they have lot of product in their store but they don't know how to arrange it. So sometimes it is very much difficult for the retailer to handle those stock, as well as sometimes the customers have to wait for a long time to get that product. So we all understand that if the product we are not able to see it, यानी कि जो retailer है अगर उनको ये product properly नहीं मिलेगा तो obviously wait करना पड़ेगा. That will consume your time, ठीक है, and that will increase your frustration. Like from the point of view of the customer, if we're talking about, then definitely it is difficult for the person to purchase the product from that particular type of store, right? So the store layout, the space, the store layout, the arrangement of the product is very much important, right? Like if we'll go toward any of the branded stores, just take the example of the Mochi. Okay, Mochi is basically a store which is selling the footwear. What we are able to see that they have a proper layout like this. They have a multiple racks, and if the store is like this, we are able to see that in between there are some of the stock is here, and majority of the product is like here. So they are using a wall a lot. So this is the layout of the Mochi store. Like that is a organized retail store of shoes or the footwear. So what we are able to understand that the store layout is going to tell you that how many people are going to visit your store at a single time. Like if there is a lack of space, definitely the people are not able to, the retail store is not able to manage so many people at a single time. So a spacious store is required. Okay? So retail design is a systematic way to arrange the product in a store. Okay? Like how we are going to show the merchandise to the consumer. So how we are going to use the props. Props का मतलब होता है जैसे rack, hanger and all these things. So how we are going to use the props and where we are going to locate our merchandise. Like कहाँ पर हम अपने merchandise को locate करेंगे. So these things matter. ठीक है. ऐसे ही कभी भी कोई पर्सन, अगर कोई कस्टमर एक बार रिटेल स्टोर में एंटर कर जाता है, दे आर इन द डीकम्प्रेशन स्टेज. डीकम्प्रेशन स्टेज का मतलब ये है कि अब वो स्टोर में एंटर कर चुका, फ्रीली ही और शी इज गोइंग टू वैंडर इन द होल स्टोर, बट दैट इज इवन पॉसिबल व्हेन देयर इज अ स्पेस. ठीक है. जैसे एग्जांपल के लिए, इफ यू आर सेलिंग द जूल आइटम्स, तो ज्वेलरी स्टोर में आप कभी भी जाना तो आप एक चीज नोटिस कीजिएगा कि जो स्टोर है उसमें इन बिटवीन यू विल गेट ओनली द चेयर्स. आपको सिर्फ चेयर्स मिलेगा क्योंकि ज्वेलरी इज दूस काइंड ऑफ प्रोडक्ट विच दैट इज अ प्रीशियस प्रोडक्ट. ठीक है. तो ऐसे केस में द पीपल आर गोइंग टू स्पेंड अ लॉन्ग टाइम. सही बात है. सो इन खड़े होकर के वो प्रोडक्ट नहीं परचेज कर सकते हैं. सो दैट्स व्हाई देयर इज अ लॉट ऑफ स्पेस विच इज ओनली फॉर द कस्टमर. ठीक है. द चेयर्स आर देयर. So basically it is a systematic way of showing the merchandise to the customers. It is basically to increase the convenience and sale by the customer. It is for the increase the convenience of the customer and increase the sale of the product. ठीक है. Now let's move toward the book. Once tailor finalize the store location, एक बार जब उनको store location मिल गया, then after that once the retailer finalized the store location, then and its format it means that how we are going to design the store. ठीक है. The next task is about the store image. अब आपके स्टोर का लुक कैसा होना चाहिए. अगर हम कोई भी ऑर्गेनाइज रिटेल का एग्जांपल लीजिए, जैसे कि आप अब डोमिनोज देखिए, you will see from the outside like they are always using a glass
ग्लास इन देयर स्टोर, आप देखते होंगे कि वो कांच का यूज बहुत ज्यादा करते हैं. द येलो कलर्स दे हैव, दैट इज अ रिटेल एटमोस्फियर. So what is the image of your store that is going to persuade the consumers to enter in that store, right? So interior designing and exterior designing is basically showing your overall retail image. ठीक है. So यहाँ पर आपको रिटेल मतलब एक बार जगह फाइनलाइज हो गया, स्टोर लोकेशन फाइनलाइज हो गया, एक बार आपका फॉर्मेट फाइनलाइज हो गया कि किस तरीके से हमें प्रोडक्ट को अरेंज करना, फॉर्मेट क्या रहेगा हमारे स्टोर का. ठीक है. टाइप्स ऑफ जब स्टोर लेआउट में बढ़ेंगे ना तो फॉर्मेट वगैरह आप देखते चलना, फिर ग्रिड है, मल्टीपल लेआउट दे हैव. So once the location and format is totally finalized, then we are going to move toward the image of the store, like interior and exterior image of the store. ठीक है. जो स्टोर डिजाइन है और जो लेआउट है, दैट इज इम्पोर्टेंट. व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट? बिकॉज आपका जो रिटेलर और कस्टमर इंट्रैक्शन और जो इंटरफेस होगा, दैट विल डन इन दैट पर्टिकुलर स्टोर. ठीक है. सो ऐसा आपको अपने स्टोर को डिजाइन करना है that is not inconvenience for the customer. And sometimes it happened, like occasionally if there is a rush, that can be possible कि वहां पर रश की वजह से आपके लिए इनकन्वीनियंस हो जाए. बट आपका जो स्टोर का डिजाइन होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि स्पेशियस हो, लोगों को चलते चलते ऐसा ना हो कि वो जो पीपल हैं दे आर बेसिकली ऑब्स्ट्रक्ट इन देयर पाथ, कुछ ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए उनके पाथ में. ठीक है. तो बेसिकली कंफर्टेबल होना चाहिए कस्टमर के लिए जो भी आपका स्टोर डिजाइन और जो भी स्टोर लेआउट है. इंटरेस्टिंग होना चाहिए, एक पॉजिटिव ओवरऑल इंप्रेशन होना चाहिए आपके स्टोर का, स्टोर डिजाइन का, लेआउट का और मर्केंडाइज का. किसके ऊपर? आपके कस्टमर के ऊपर. ठीक है. और अगर बात करें कंपोनेंट्स ऑफ रिटेल एटमोस्फेयर की, लाइक स्टोर डिजाइन, तो मैंने बता ही दिया था एटमोस्फेयर में आपका एक्सटीरियर डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग, हर चीज आ जाएगा. रिटेल एटमोस्फेयर में आपका color of the store, color, logo and the signage, उसके अलावा आपका लाइट वगैरह सब आ रहा है इन्वायरमेंट में. तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो आपका स्टोर डिजाइनिंग होनी चाहिए, जो भी आप स्टोर डिजाइन कर रहे हैं, जो भी आप डिजाइनिंग कर रहे हैं, जैसे अगर आप एक नोटबुक में कोई भी ड्राइंग बना रहे हैं तो दैट इज गोइंग टू शो द इमेज ऑफ योर ड्राइंग स्किल, राइट? So same here, like whatever designing you are making, that is going to present your product and service in front of the customer, and that is going to make the overall store image in front of the customer. Like what is the image? Like somehow the people are very much sophisticated. कुछ लोग बहुत sophisticated होते हैं. So first of all, they always decided that in which store they have to go for purchasing the product, and sometime the attraction which they are basically, they are attracted towards some of the store because of the image, because of the cleanliness, because of the light, because of the board, because of the designing. ठीक है. So the store image is created that is totally based upon the store design. ठीक है. So what is the objective of good retail store design? मतलब अच्छा retail, good retail design का क्या objective हो सकता है, क्या benefit हो सकता है? So store design और जो layout है, they have a prominent role in creating a good store and retail image and attract the customer toward the retail store. ठीक है. जैसे अभी मैं एग्जाम्पल में आपको रेस्टोरेंट के बारे में बोलूं, तो जैसे ही हम लोग बीकानेर में एंटर करते हैं तो वी आर थिंकिंग यस वेजिटेरियन यहाँ फूड्स अवेलेबल है, नॉर्मल सा स्टोर है, बहुत एक्सपेंसिव और हाई फाई नहीं है. When we are entered in the Somia 19, then at that time we will think, oh, this is a sophisticated place. Even the price is also high. The designing they have, the welcome, how they are welcome you, these things matters, right? So here I'm normally taking the example. So this is the retail image. मतलब एक कस्टमर के सामने आपके स्टोर का क्या इमेज है, जैसे एक प्रोडक्ट का इमेज होता है ना, वैसे एक कस्टमर के सामने आपके रिटेल का क्या इमेज है. ठीक है. तो जो गुड अगर आपका स्टोर डिजाइन है, so it should be like a good story. हर एक मतलब एक तरीके से आपका ये जो पूरा प्रोसेस है सेल करने का प्रोडक्ट, दैट विल बी गो स्मूथली. ठीक है. उसके अलावा यहाँ पर आपका फर्स्ट इंप्रेशन मैटर्स. जैसे आपके स्टोर के बारे में क्या इंप्रेशन है, लाइक सोफिस्टिकेटेड प्लेस, चीप प्रोडक्ट अवेलेबल होता है, टाइमली प्रोडक्ट अवेलेबल होता है. तो द स्टोर इमेज कैन बी वेरी. इट्स नॉट अबाउट ओनली द पुअर, इट्स नॉट अबाउट ओनली द गुड, it's about that for what the image you have. Like for example हम कह सकते हैं ना कि if we're taking the example of two phones, like for example अगर आपका just ले लीजिए example MI का. So MI जैसे सुनते हैं हमारे दिमाग में क्या आता है, चीप प्रोडक्ट, है ना.
अब जैसे हम सुनते हैं एप्पल, प्रीमियम प्रोडक्ट एंड एक्सपेंसिव प्रोडक्ट, तो इट्स नॉट सेइंग दैट द एमआई से बेटर एप्पल है और एप्पल से बेटर एमआई है, इट्स नॉट सेइंग दैट, बट द इमेज ऑफ बोथ प्रोडक्ट इज टोटली डिफरेंट इन कॉन्सेप्ट ऑफ द प्राइस, राइट? तो हियर दैट इज सेइंग थिंग कि लाइक यहाँ पर आपका जो इम्प्रेशन जो है वो अकॉर्डिंग टू स्टोर इमेज होगा। लाइक जैसे आपके स्टोर के लिए क्या थिंकिंग है कि ये सोफिस्टिकेटेड प्लेस है, ये टाइमली प्रोवाइड करने वाला प्लेस है, प्रोडक्ट को टाइमली प्रोवाइड कर देता है, फिर या तो ये चीप प्रोडक्ट का प्लेस है। So this is somehow it is making the image in front of the customer. Okay, what are the 5 objectives here? Some objectives are written. So when you all have a point, everyone? Yes, ma'am. Okay. So here when we are designing or redesigning a store, it's not about that you have to be rigid in store designing. You can modify it according to time and according to the environment. Nowadays आप लोगों ने एक चीज नोटिस किया होगा, बहुत पहले मैं बताती हूँ कि when we have a conventional type of store or retail store, we are only able to see that there is a big board, a billboard that is basically in front of the store. और आजकल अगर आप देखिएगा boards जो हैं, they are basically using the neon lights and all if they are basically displaying their store. है ना? Earlier we are able to see the shutter, even the shutter is nowadays even available. लेकिन we are able to see the glass door, the glass window they are using for displaying the product. So according to time to make your store image better, we can redesign it or we can modify it. हम changes कर सकते हैं, ठीक है, अपने retail store में. So manager, whoever is basically responsible for redesigning and designing the store, they have to meet some 5 objectives which is written in your book. First one is design should be consistent with image and strategy. ठीक है, so अगर आप अपने objective, मतलब you want to meet the objective is something which we want to accomplish, ठीक है, रिटेल मैनेजर को डिफाइन करना चाहिए कि आखिर हमारे टारगेट कस्टमर कौन है, एंड देन आफ्टर दैट अकॉर्डिंग टू द कस्टमर नीड हमें उसे डिजाइन करना चाहिए. When you will move to the Titan store, when you will move toward the Helios, that is one of the branded retail store for selling the hi-fi watches like Rolex and all. So if they are thinking that the people are the the people are of the high status and the rich people, so we have to make it more sophisticated, right? So according to the customer needs and the compliments which is given by the customers, like they can suggest you for the changes and all. So according to that and according to your target customer, we have to take the decision of designing the store. अब यहाँ example मेरे को कुछ चीजें ऐसे लिखी हुई हैं कि एक store with low price item, like whoever is selling the product of the low cost should use the design of ceiling and floor in such a way that convey the impression of the low cost. यानी कि ऐसे केस में आप जो सीलिंग यूज कर रहे हैं और जो फ्लोर यूज कर रहे हैं वो इस तरीके से आप यूज मतलब डिजाइन कीजिए जो वो कन्वे करे कि यस यू आर सेलिंग द प्रोडक्ट ऑफ द लो कॉस्ट, ठीक है. So physical environment is also something which is basically help you to set the price of the merchandise. Like we can able to see, like when we are purchasing the product from the vendor, we are bargaining the product. But whenever we are going to the organized retail store, we are never bargaining, right? Maybe because the price is fixed and all. But when the customer is paying the high price, they also just connect it with the physical environment that from where they are purchasing that product. ठीक है. So the physical environment of the retail store, the image matters, ठीक है. तो जहां जब भी आप डिजाइनिंग करिए अपने रिटेल स्टोर का, ऑलवेज रिमेंबर दैट फॉर whom you are designing this retail store, ठीक है. डिजाइन जो होना चाहिए कंसिस्टेंट होना चाहिए इमेज और स्ट्रैटेजी के साथ. नेक्स्ट वन इज डिजाइन शुड पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस द कंज्यूमर बिहेवियर. तो अगर आप डिजाइनिंग कर रहे हैं तो आपको कंज्यूमर बाइंग डिसीजन का बिल्कुल ध्यान होना चाहिए. कंज्यूमर बाइंग डिसीजन प्रोसेस याद होगा तुम लोग को. तो रिटेलर शुड बी कॉन्सेंट्रेट ऑन द स्टोर लेआउट एंड द स्पेस प्लानिंग इशूज. तो जब भी आप डिजाइनिंग कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि कंज्यूमर प्रोडक्ट को किस तरीके से परचेज करता है, व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स दे आर गोइंग थ्रू व्हेन दे आर परचेजिंग द प्रोडक्ट. तो रिटेलर जो है दे हैव टू बी वेरी मच कंसंट्रेटेड टुवर्ड the store layout and the space plan issue, ठीक है. जो ग्रोसरी स्टोर है they should never be laid out like a women's specialty store.
तो यहाँ पर ग्रोसरी स्टोर जो है वो आर ऑर्गेनाइज टू फैसिलिटेट एन ऑर्डरली शॉपिंग ट्रिप एंड डिस्प्ले एज मच मर्केंडाइज एज पॉसिबल। तो यहाँ पर ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ग्रोसरी जो है, ग्रोसरी स्टोर है, दैट इज दूज स्टोर वेयर द पीपल विल ऑलवेज कम, राइट? व्हाई? बिकॉज दे आर सेलिंग द एफएमसीजी गुड्स एंड दैट इज द डेली बेस्ड प्रोडक्ट। अगर ग्रोसरी स्टोर है और वो हर दिन लगभग उनके यहाँ पर बहुत ज्यादा कस्टमर्स तो आएंगे ही, क्योंकि ग्रोसरी स्टोर में तो हर एक कोई को प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है जो भी वो सेल करते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आपको कोशिश करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा मर्केंडाइज को आप शो करो। मर्केंडाइज लाइक द प्रोडक्ट विच इज ऑफर्ड टू सेल। If we'll go to the any of the general store, we are able to see if there is a no product, means अगर कोई भी प्रोडक्ट आपको ज्यादा नहीं दिखेगा तो नेक्स्ट टाइम आपको कोई भी अल्टरनेटिव खरीदना है, लाइक इफ यू वांट टू परचेज टाटा सॉल्ट की जगह पतंजलि सॉल्ट, तो वहां पर वो आपको अवेलेबल ही नहीं होगा, तो यू विल मूव टुवर्ड द अनदर स्टोर। अगर आप ग्रोसरी स्टोर हैं तो ज्यादा से ज्यादा अपने मर्केंडाइज को आप दिखाइए, लोगों को, कस्टमर्स को दिखाइए कि यू हैव वेराइटीज इन दीज प्रोडक्ट। लाइक इफ यू आर सेलिंग द चॉकलेट, यू डोंट नीड कि 8 चॉकलेट को आप दिखा रहे हैं, अगर आपके पास है भी तो यू आर जस्ट कीपिंग दैट इन द बॉक्स एंड यू आर basically putting it in your stock. No, don't do this. Just try to show whatever product you have, right? Next one is like if it is about the boutiques are laid out in a free form design that allows customer to browse. तो यहाँ पर ये चीज देखना बहुत जरूरी है कि in which product you are dealing and what kind of perception the people have toward the product, right? If you'll go to the clothes store में भी यही चीज है कि अगर आप कोई लोकल क्लोथ स्टोर में जाते हैं तो अगर आपको बहुत सारे वहां प्रोडक्ट नहीं दिखेंगे तो आपको लगेगा कि जो आपको चाहिए, जो आपका एक्सपेक्टेशन है, दैट कैन नॉट बी फुलफिल्ड। So the way of showing the product, merchandise, the way of arranging the product, that matters. If you're designing the store layout, just इतना होना चाहिए कि आपके सारे प्रॉपरली प्रोडक्ट जो है वो विजिबल हो कंज्यूमर्स को, ठीक है? स्टोर लेआउट और स्पेस प्लानिंग इश्यूज पे बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ओके, नेक्स्ट वन इज, हाँ, जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि विमेन्स स्पेशलिटी स्टोर का मतलब यहाँ पर वो है कि जो स्टोर में सिर्फ विमेन के से रिलेटेड प्रोडक्ट मिलते हैं। So here they are saying that the grocery store will be never like those kind of store which is a specialty store, because grocery store में they have a multiple product. True or not? सही बात है ना? ग्रोसरी स्टोर में इनके पास इतने सारे प्रोडक्ट होते हैं, लाइक ईच एंड एवरीथिंग, इट इज रिलेटेड विद द स्पाइसेस, फ्लावर एंड मल्टीपल थिंग्स दे हैव। दैट इज नॉट सिमिलर लाइक द स्पेशलिटी स्टोर, ठीक है? तो ग्रोसरी स्टोर में इस तरीके से विजिबल होना चाहिए कि आपका पूरा दुकान भरा भरा लगे कि हाँ बहुत सारे इनके पास सामान है, so we are easily able to get the product. But yeah, same thing cannot be done in the specialty store or some of the organized store, because they have a limited product line. जितना उनके पास लिमिटेड प्रोडक्ट लाइन है उस हिसाब से दे आर एबल टू शो द प्रोडक्ट और बेसिकली शो द मर्केंडाइज, राइट? So there is a difference in the perception if you are visiting the grocery, if you are visiting the specialty, or if you are visiting the mall. So design जो होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए that is going to positively influence on the customer or consumer behavior, and आपका जो design होना चाहिए that is according to the strategy, ठीक है? Like whom we are going to sell the product. Next one is, समझ में आया ये दोनों पॉइंट? Yes, ma'am. Points are clear to all of you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Next one is design should be considered cost versus value. Cost versus value. ठीक है? So consistent with any retail decision, the third design objective is to consider the cost associated with each store design element versus value received in terms of higher sales and profit. इसका मतलब क्या है? Within a store, the best location within a store are worth the most, so they reserve for certain type of merchandise. They are basically saying about that what type of product you are selling, at what cost, and is the value of your retail store that matters, right? So here they are saying कि आपका जो cost है, which is associated with each object, consider the cost associated with each store design element, ठीक है? That is value to receive in terms of the higher sales and profit. यानी जितना पैसा लगाया है, ये वो सेंस में कह रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने कभी वो हीरा पन्ना स्टोर गए हो, कितने लोग गए हो कोई हीरा Yes, पन्ना? ma'am. Yes, ma'am. that is the one of the jewelry store, है ना?
ज्वेलरी है, एक्सपेंसिव, और वो जो आपका प्रीशियस ज्वेलरी स्टोर है. So you are able to see the way they are designed their store. They basic marbles जो होते हैं ना, कट कर करके पूरे में डिजाइनिंग हो रखा है. So they are saying that whatever designing, whatever cost you are basically using in the store design, whatever amount you are basically putting in the store design, you just need to get the value like this as well. ठीक है, तो मतलब जितना आप कॉस्ट लगा रहे हैं अपने स्टोर डिजाइन के एलिमेंट्स में, इधर यू आर डूइंग द प्रॉप्स हो गया, जैसे आप रैक्स बनवा रहे हो, वो एकदम एक्सपेंसिव वुड यूज कर रहे हो, कुछ भी यूज कर रहे हो अगर आप, तो उसका जो वैल्यू होना चाहिए वो आपको फाइनली हायर सेल्स के रूप में मिलना चाहिए. समझ में आई बात? समझ में आई? अच्छा, तुम लोग एक और पॉइंट समझो, इसको हटा के एक नॉर्मल टर्म बताती हूँ. इफ अ वुमन इज basically wearing a designer dress, what is the value she deserves? Like maybe compliment, like the people started complimenting about her dress, right? So here the things are saying in that way कि लाइक अगर आपका जो कॉस्ट, आपने हर एक जो भी स्टोर डिजाइन एलिमेंट्स में जो भी आपने पैसे लगाए हैं, उसका वैल्यू जो आपको वापस मिलना चाहिए, जो इन्वेस्टमेंट शेयर का अमाउंट जो आपको वापस मिलना चाहिए, वो कैसे मिलना चाहिए? हायर सेल्स एंड प्रॉफिट की तरह. मतलब आपका सेल जो प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा सेल हो और आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिले. ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल में आप देखिए कि जो बेस्ट लोकेशन है किसी भी स्टोर का, बेस्ट लोकेशन इट मीन्स द मार्केट एरिया और दूज एरिया दैट इज वेरी एक्सपेंसिव. अगर हम पटना की बात करें तो विच एरिया इज वेरी एक्सपेंसिव? दिस बेली रोड एरिया एंड बोरिंग रोड एरिया, है ना? So the best location within a store are worth the most, so they are reserved for certain type of merchandise. And those companies who are basically using the expensive area, लोकेशन बहुत महंगे जगह पे अगर उन्होंने स्टोर ओपन किया, तो ज्यादातर आप नोटिस करना है कि द प्रोडक्ट दे आर सेलिंग दैट इज आल्सो इवन एक्सपेंसिव, राइट? सो बहुत सारे ऐसे ग्रोसरी स्टोर है जो कि आपके स्टोर एंट्रेंस जो है आपको आज, मेनी ग्रोसरी स्टोर्स प्लेस देयर प्रोड्यूस near the store's entrance because it has a higher margin than other merchandise categories. Yes, so basically आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे ग्रोसरी स्टोर में एंटर करते के साथ ही इधर इधर सब जगह पे आपको सामान दिखेगा. खासकर यू आर एबल टू सी द ब्रूम एंड ऑल दीज थिंग्स आर ऑलवेज प्लेस्ड आउटसाइड ग्रोसरी स्टोर, राइट? तो बहुत सारे ऐसे ग्रोसरी स्टोर है जिनमें आप जैसे एंटर करोगे आपको दिखेगा कि दे हैव सो मेनी प्रोडक्ट, दे आर बेसिकली कीपिंग इट इन द एंट्रेंस. एंड सम ऑफ द प्रोडक्ट जिसका मार्जिन हाई है, कुछ ऐसे प्रोडक्ट जिसका मार्जिन हाई है, वो क्या करते हैं, वो बिल्कुल एंट्रेंस के पास और नियर बाय रखते हैं और पॉइंट ऑफ सेल्स एरिया में रखते हैं. पॉइंट ऑफ सेल्स एरिया जहां पर आप बिलिंग वगैरह करते हो. क्यों ऐसा करते हैं वो? वाई? बिकॉज इट क्रिएट्स अ नाइस एटमोस्फेयर एंड इफ द प्रोडक्ट विल बी सोल्ड डेफिनेटली दे विल गेट मोर प्रॉफिट एंड मार्जिन. सो रिटेलर्स जो है दे हैव टू डेवलप मैप कॉल्ड प्लानोग्राम. तो रिटेलर्स को एक मैप डेवलप करना चाहिए जिसको हम प्लानोग्राम कहते हैं, एंड दैट इज बेसिकली प्रिस्क्राइबिंग द लोकेशन ऑफ द मर्केंडाइज बेस्ड ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी. यानी कौन से एरिया में कौन सा प्रोडक्ट रखे उसके बारे में प्लानोग्राम आपको बताएगा. ठीक है, सो आई गेस दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. हाँ, एक और इंस्टेंस यहाँ दिया हुआ है कि certain type of lighting used to highlight expensive jewelry and crystal cost more the rows of bare fluorescent bulbs. So yes, यहाँ पर यही चीज बोला जा रहा है कि अगर आप कोई भी, मतलब अगर आप अपने स्टोर की डिजाइनिंग कराते हो और आप उसमें मल्टीपल प्रॉप्स यूज करते हो, आप वहां पर मतलब बल्ब, कलर्स, कलरफुल ये क्या बोलते हैं उसको, कर्टन्स वगैरह लगाना, ये सब चीजें अगर आप पूरे स्टोर में कर रहे हो तो ऐसे केस में आपको वैल्यू भी ज्यादा मिलना चाहिए क्योंकि यू आर स्पेंडिंग फॉर द स्टोर. सो यू नीड टू गेट सम अमाउंट, इन्वेस्टमेंट जो आपने किया उसका रिटर्न प्रॉपरली मिलना चाहिए. और आपने ये चीज नोटिस किया होगा कि जो रिटेल की डिजाइनिंग है, ज्यादातर जो एक्सपेंसिव डिजाइनिंग होती है वो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट के लिए होता है. अगर हम स्टोर लोकेशन भी लें, कि अगर स्टोर लोकेशन देखें तो बहुत, अगर अच्छे और मार्केट वैल्यू जिस जगह का बहुत हाई है वहां पर अगर कोई स्टोर ओपन है तो उस स्टोर में प्रोडक्ट भी हाई फाई और सोफिस्टिकेटेड ही सेल होते हैं. ठीक है, इवन फॉर सेलिंग द हाई मार्जिन प्रोडक्ट वी आर यूजिंग द एक्सपेंसिव प्रॉप्स एज वेल. जैसे कि अगर आप ज्वेलरी सेल कर रहे हैं तो ज्वेलरी के आसपास देखिएगा लाइट वगैरह किस तरीके से लगाया जाता है ना? आप तो देख सकते हो कि इलेक्ट्रॉनिक्स
उसको क्या बोलते हैं, वर्ड मैं भूल रही हूँ। सिर्फ गले का पार्ट होता है ज्वेलरी के लिए, उसका नाम क्या है, नहीं। तो आप देखोगे कि जो ज्वेलरी वो दिखाते हैं, वो जिसमें आपको ज्वेलरी जो प्लेस करते हैं, यू आर एबल टू सी दैट इज रिवॉल्विंग. So why they are using such kind of additional props for showing the jewelry? Because maybe that prop costs 10,000 rupees, but the jewelry which is showing in that prop, that costs in 10 lakh rupees. ठीक है? So we are using the additional and beautiful props, and the designing should be proper. According to that, we are selling the product. ठीक है? Whatever we are investing, we should get in proper return of that. So I guess this point is clear to all of you. Design should consider cost versus value. This point is clear, everyone? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है. Maybe I'm using a very layman language, लेकिन मेरे concept समझ में आ रहा है ना तुम लोगों को? Yes. Okay, so next point is design should be flexible. Design should be flexible. Flexible, it means that should be changed according to the demand and need. We can change the design of the store. If you will go to the Chandni Chowk in the Delhi, you will still see the conventional store there. Like I am giving the example. Like इतना ज्यादा वो store आपको बहुत ही पुराना लगेगा, और है भी, लगभग 50 years, 100 years back से वो सारे store है, but they didn't change the retail design, their store design. Do you know why? सोचा है क्यों? Anyone tell me that why they didn't change the design of the retail store? Still they are using the conventional way. मैम उनका ट्रेडमार्क होगा, उनका ट्रेडमार्क होगा, उड़ी से उनका पहचान होगा, दैट्स व्हाई. वेरी गुड. ये तो एकदम सही बात है कि चांदनी चौक इज बेसिकली अ पुरानी दिल्ली, राइट? And because of this reason, they are not changing the design of their store. Even whatever they are selling, like the product they are selling, जो भी प्रोडक्ट वो सेल कर रहे हैं, जैसे अगर आप खारी बावली चले जाओगे, ये मसाला सारे तरफ आपको पेपर ये सब चीजें दिखेंगी, तो मसाला वगैरह जो है उनका जो ट्रेडिंग हो रहा है ना, दैट इज इन द होलसेलर वे. तो वो होलसेलर के तरीके से वो सेल करते हैं, रिटेलर को भी देते हैं, इसीलिए वो तरीके से आपसे स्टोर मानो. तो उनके स्टोर का इमेज ना उनके सेल पर कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा है. बेसिकली ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, समझ रहे हो? कि द स्टोर इमेज इज नॉट बेसिकली deteriorating the image that the sellers will avoid those stores. Still the people are purchasing the products from that store. तो उनका सेल्स में ना, सेलिंग में कोई कमी नहीं आ रहा है उनके स्टोर के डिजाइन के नहीं चेंज होने पे, एंड दे आर मोर फोकस्ड इन सेलिंग द प्रोडक्ट ऑल द टाइम. वहां इतना रश होता है कि वो इतना एक भी दिन के लिए अगर अपना स्टोर बंद कर लेंगे तो दैट इज गोइंग टू अफेक्ट अ वेरी, मतलब उनका प्रॉफिट का बहुत अच्छा खासा मार्जिन एक दिन में उनका लॉस में चला जाएगा, समझ रहे हो? So majority of the time they are basically very much focused on sale because they have a multiple consumers, they have a multiple retailers as well. So they don't need to change their store. Still the sale will be same. But if we are selling the expensive and high those products to the customer, अगर आप customer को product sell करो बहुत expensive, so that required a particular, एक तरीके से बोल सकते हैं, particular आपको environment चाहिए उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए. अगर टाइटन का एग्जांपल ले लो, टाइटन इट इज सेलिंग अ टाइटन रागा, दिस इज वन ऑफ द एक्सपेंसिव प्रोडक्ट दे आर सेलिंग. दे हैव मल्टीपल वॉचेस, बहुत सारे वॉच है उनके पास. अगर वो जैसे चांदनी चौक में आपका स्टोर है वैसा अगर दे विल स्टार्ट सेलिंग दोस प्रोडक्ट, सो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू डिटेरियोरेट द इमेज ऑफ द होल Titan brand, right? Because their image is related with the sophistication, and they are dealing with those people. They are dealing with directly with the consumers. They are not selling local product, but they are selling the branded product. So sometimes this also matters. चलिए ठीक है. Design should be flexible. So design should be flexible. It means that according to demand, we can change the format of the store. We can make the additional designing, or we can remove some designing. So merchandise changes, so much store's image. As merchandise changes, so much the store image. Or other, yes, if you are started selling the additional product, you need to change the store image, store design as well. जो स्टोर प्लानर है उनको डिजाइन को चेंज करना चाहिए, दैट विद द मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी. तो फ्लेक्सिबिलिटी जो है दैट कैन बी ऑफ टू फॉर्म, दो तरीके से. द एबिलिटी टू फिजिकली मूव स्टोर कंपोनेंट एंड इजी विच
and ease with which component can be modified. तो अगर आप चेंजेस ला रहे हो, अगर अपने स्टोर में जस्ट कर रहे हो, तो दो तरीके से, एक तो इस तरीके से आप प्रोडक्ट को अरेंज करो अपने स्टोर में, इस तरीके से प्रॉप्स को और सारे आइटम्स जो आपके कंपोनेंट है स्टोर को, उसको इस तरह अरेंज करो कि उसको दोबारा भी हम बाद में अरेंज कर सके, बाद में हम चेंज कर सके। और दूसरा यहाँ पर एक फ्लेक्सिबिलिटी तो ये है, ये चीज दिमाग में रखना है कि अगर आप नेक्स्ट टाइम भी उसी पर्टिकुलर फिजिकल जो भी कंपोनेंट्स है उसको आराम से आप इधर से उधर शिफ्ट कर पाए, तो ये चीज ध्यान रखना है जब भी आप ऐसा डिजाइनिंग करें, कोई भी चेंजेस कर रहे हैं तो। और दूसरी चीज ये है कि विच मतलब ये फर्स्ट चीज द एबिलिटी टू फिजिकली स्टोर कंपोनेंट, कि फिजिकली वो मूव हो जाए। सेकेंड चीज कि कंपोनेंट को हम इजीली मॉडिफाई कर पाए, जो भी कंपोनेंट है, लाइक रैक अगर है तो उसको हम प्रॉपरली दोबारा से मॉडिफाई कर पाए, चेंज कर पाए। और अगर कोई मूवेबल आइटम्स है, लाइक बीच में डेस्क वगैरह कुछ ऐसा लगा है, तो आप उसको ऐसे जगह पे शिफ्ट कीजिए कि दोबारा उसको हम दूसरे जगह पे शिफ्ट कर पाए, ठीक है। सो डिजाइन ऐसा होना चाहिए दैट शुड बी फ्लेक्सिबल इंस्टेड ऑफ यूजिंग द रिजिड डिजाइन जो कि फिक्स हो जाएगा। उससे अच्छा है कि वी कैन यूज द रिमूवेबल एंड फोल्ड, मतलब रिमूवेबल डिजाइन जिसको हम बाद में रिमूव कर सके, दूसरा उस पर अप्लाई कर सके। तो दिस शुड बी ऑलवेज वी नीड टू कंसिडर। नेक्स्ट वन इज डिजाइन शुड बी रिकॉग्नाइज द नीड ऑफ द डिसेबल्ड। मतलब अगर आजकल की बात अगर हम करें, ऑल ओवर द वर्ल्ड governments have brought legislation to provide equal opportunity for physically handicapped people. Like आजकल आपने नोटिस किया होगा, if you will see the railway station as well, you are able to see that there are the sliders which is provided by the गवर्नमेंट। मतलब गवर्नमेंट जो है वो स्लाइडर्स वगैरह बना रही है कि अगर कोई पर्सन है जो फिजिकली डिसेबल है तो वो आराम से instead of using the stairs they have the option of lift and the slider, right? तो आराम से उसको यूज कर सकते हैं। रेलवे स्टेशन में भी है, मॉल में भी आप ये चीज देख सकते हैं कि मॉल्स में भी दिस काइंड ऑफ ऑप्शन इज प्रेजेंट, ठीक है। तो यही चीज यहाँ बोला जा रहा है कि अगर आजकल की अगर हम बात करें तो पूरे वर्ल्ड में सारे गवर्नमेंट जो है वो एक तरीके से इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं कि फिजिकली हैंडीकैप पीपल को, दीज पीपल विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट these peoples with help of the government acts, legislation and NGOs have started doing well in almost all spheres of the life. और ये जो लोग हैं because of the government के help से, NGOs के help से ये लोग भी बहुत अच्छा काम कर पा रहे हैं, physically disabled people. So in the world of the retailing, many nations have made it mandatory for retailers to consider the convenience disabled people apart from it. तो रिटेलर्स की भी जिम्मेदारी कि वो अपने स्टोर में आराम से कन्वीनियंटली जो डिसेबल पीपल हैं वो भी उनके रिटेल स्टोर में विजिट कर पाए, तो इसके लिए भी उन्होंने बहुत सारे प्रोविजंस बनाए हैं। तो मैम आकांक्षा बहुत देर से वेटिंग में है, मतलब वो उसका बेटा वो कनेक्ट बहुत नहीं, लेट आई है, बहुत आई है, उसको बोल मैम दो उसका कनेक्ट नहीं हो पा रहा था इसलिए। वो चाहे कोई भी रीजन हो, आई एम फॉर मी एवरी स्टूडेंट इज इक्वल, तो मैंने बहुत सारे बच्चों को अलाउ नहीं किया। चलिए, अपार्ट फ्रॉम इट बहुत सारे रिटेलर ऐसे हैं which providing the special amenity or convenience for disabled expand and its market and fulfill its social obligation. तो as a corporate social responsibility के point व्यू से बताऊं तो एक सामाजिक जो जिम्मेदारी है उसको भी आपके रिटेलर्स जो हैं उनको ये फुलफिल करना है, and they are providing the convenience to the disabled people. तो रिटेल स्टोर जो होना चाहिए वो इस तरीके से डिजाइन होना चाहिए कि डिसेबल पीपल भी आपके स्टोर में आ सके, विजिट कर सके, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए आपके स्टोर कि वो आपके स्टोर के अंदर एंटर भी ना कर पाए। तो आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने बताया था छोटे मोटे रिटेल स्टोर में तो ये पॉसिबिलिटी कम है क्योंकि उनके पास स्पेस की काफी कमी होती है, छोटे मोटे जो रिटेल स्टोर हैं आपके, जो अनऑर्गेनाइज्ड रिटेल स्टोर है। बट जो ऑर्गेनाइज्ड रिटेल स्टोर है मैंने आपको बताया था कि दे हैव द ऑप्शन ऑफ स्लाइडिंग, ठीक है। तो आप स्लाइड को यूज करके आपको कोई भी हेल्प कर सकता है कि आप अंदर जा सकते हैं, और आपके स्टोर में इतना स्पेस होना चाहिए कि दे कैन एबल टू मूव एंड विजिट योर स्टोर comfortably and with convenience, right? And they are able to see and they are able to touch the product as well. तो ये चीज पॉसिबिलिटी होनी चाहिए। तो इस चीज के लिए हमें स्टोर डिजाइनिंग को एक बैलेंस्ड वे में बनाना है विदाउट रिमूविंग द कॉन्फ्लिक्ट एंड ऑल दीज थिंग्स। स्टोर लेआउट जो होना चाहिए वो इस तरीके से होना चाहिए जो आपके मर्केंडाइज के परचेज को इंक्रीज करे, ना कि जो पीपल है दे आर डीमोटिवेटेड टू एंटर इन योर
स्टोर। अगर लेआउट आपने बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना दिया, ठीक है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना दिया, जटिल बना दिया, the things which you are placing that is not in the proper location, तो somehow जो भी आपके लेआउट अगर कॉम्प्लेक्स है तो कस्टमर के लिए प्रोडक्ट को ढूंढना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। और ऐसा होता है, जैसे अगर आप जाओ बिग बाजार में तो सच काइंड ऑफ थिंग्स हैपन। सो फॉर दैट व्हाट यू कैन डू, यू कैन यूज द साइनेज। आप साइनेज यूज कर लीजिए, आप कस्टमर एग्जीक्यूटिव को यूज कीजिए कि जो आपके लोकेशन को और आपके एरिया को डिफाइन कर पाए कि इस वाले एरिया में ये प्रोडक्ट है, इस वाले एरिया में ये प्रोडक्ट है, ठीक है। तो इफ द लेआउट इज द कॉम्प्लेक्स, यू हैव सम मैकेनिज्म टू सॉल्व दैट कॉम्प्लेक्सिटी, बट इफ देयर इज नो मैकेनिज्म दैट इज टू मेक कस्टमर्स कंफ्यूज, एंड जो भी वो प्रोडक्ट क्यों ढूंढ रहे हैं, मे बी उनको आपके स्टोर में प्रॉपरली मिले ही ना, एंड दे आर वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम इन द स्टोर, ठीक है। सो जस्ट ट्राई टू कीप, जो मैंने आपको पहले ही बताया था मर्केंडाइज मैनेजमेंट में, कि जो भी जिस कैटेगरी का प्रोडक्ट है उसको एक ही एरिया में रखना ज्यादा बेहतर है कंपैरेटिवली टू पुटिंग इट इन द मल्टीपल फ्लोर्स। क्लियर? So I guess this point is clear to all of you that what are the basically objectives which we need, what are the objectives of a good retail store design, मतलब क्या ऑब्जेक्टिव है इनका एक अच्छा रिटेल डिजाइन करने का। तो पहला चीज कि जो इमेज वो अकॉर्डिंग टू स्ट्रैटेजी है, सेकेंड है कि कंज्यूमर बिहेवियर और परचेजिंग पैटर्न का ध्यान रखना है, थर्ड है कि जो डिजाइन दैट शुड बी फ्लेक्सिबल, इट शुड नॉट बी रिजिड, फोर्थ वन इज दैट इट कैन रिकॉग्नाइज द नीड्स ऑफ द डिसेबल्ड, ठीक है। तो ओनली and one more point is there, okay, design should consider the cost versus value. Clear हो गया सबको? Yes ma'am. Okay, so let's move toward the types of store design. What are the types of store design? So let's move toward it. चलिए, कुछ स्टोर इमेज वगैरह भी दिया हुआ है, एटमॉस्फेरिक भी दिया है, गुड एटमॉस्फेरिक क्या होता है, तो मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा बहुत इसके बारे में भी, स्टोर इमेज वगैरह के बारे में। और एक पॉइंट है यहाँ कॉर्पोरेट आइडेंटिटी टू रिटेल स्टोर। तो ये कॉर्पोरेट आइडेंटिटी टू रिटेल स्टोर जो है ना, इट इज सेइंग दैट हाउ द टाइम स्पेंड बाय शॉपर्स इन द रिटेल आउटलेट, मतलब कितना टाइम जो है आप इन्वेस्ट करते हो किस चीज में, आप अपने रिटेल स्टोर में। So development of a distinct store image is important to retailer and it is often a key for ingredient of a retail store communication. अगर हम बात करें competitive advantage की, तो एक अच्छा store image जो है वो आपके customers को influence करेगा ही। It is directly linked to the store choice and the store loyalty, मतलब store में क्या प्रोडक्ट अवेलेबल है, आपका चॉइस और आपकी लॉयल्टी क्या है उसके स्टोर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक टाइम स्पेंड बाय द शॉपर्स इन द रिटेल आउटलेट, यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है, बना हुआ है, आप देख सकते हो कि एक 31% लोग ऐसे हैं who are spending 45 to 60 minutes in the store and 13% लोग ऐसे हैं they are basically investing more than 1 hour. 18% people are below 30 minutes and there are some people who are 38% जो है वो 30 to 45 minutes, मतलब यहाँ पर वैरी कर रहा है। कुछ लोग हैं जो आधा घंटा भी नहीं रुकते हैं, कुछ लोग हैं जो आधा घंटा से पौन घंटे तक रुकते हैं, मतलब 45 मिनट्स तक, कुछ लोग हैं जो 45 मिनट्स to 60 मिनट्स रुकते हैं, और फिर कुछ लोग हैं जो 60 मिनट से ज्यादा रुकते हैं। तो मैंने बताया था आपको कि दैट इज टोटली डिपेंड अपॉन द प्रोडक्ट, व्हाट दे आर सेलिंग एंड व्हाट दे आर ऑफरिंग। If we'll take the example of the clothes merchandise, the people are spending more than 60 minutes, right? If the product is according to their choice, first they will explore the store. Once they will able to get the product one by one, they are going to analyze it. So maybe they will invest more than 60 minutes. In the case of the jewelry, if they have to purchase, यहाँ ध्यान रखिएगा, अगर उनको purchase करना है then more than 60 minutes, अगर उनको परचेज नहीं करना है below 30 minutes। समझ में आ रही है बात? These things are available। ये सारे सिचुएशन कब आएंगे? जब आपके पास चॉइस बहुत सारे हैं, मतलब आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं, आप चूज करने में आपको टाइम लगेगा। तो वहां पर द सिचुएशन बी लाइक दैट, ईदर मोर देन 60 मिनट्स और लेस देन 50 or 30 minutes, that can be the chances। Second situation, if we are talking about the grocery product, less than 30 minutes, below 30 minutes,
they want to spend, but sometimes because of the rush, they have to wait for the long time. So that is a different situation. But the people, how much they want to invest the time, that is below 30 minutes. 30 to 45 minutes, it varies. 45 to 60 minutes, but it totally depends upon the product, like what kind of product we are selling. Okay, so there are some points which is considered for developing a unique store identity. Logo use कीजिए, color combinations properly use कीजिए, advertisement कीजिए, website पे advertisement कीजिए, social media पे advertisement कीजिए, store positioning बनाइए. Store positioning का मतलब होता है image of store in the mind of the customer. So store image जैसे फूड वर्ल्ड है, वॉलमार्ट है, इन सब का क्या है आपके स्टोर में, इस आपके स्टोर का क्या है, ये पोजिशनिंग हो रखा है, मतलब इन सारे स्टोर के बारे में ऑलरेडी जानते हैं. सो द इमेज ऑफ द स्टोर जो है वो हाउ वी कैन डू द स्टोर पोजिशनिंग बाय एडवर्टीजमेंट. हम एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं, हम लोगो अच्छा बना सकते हैं, एक्सटीरियर डिजाइनिंग बेटर कर सकते हैं. We can develop the extent lettering, or we can बोल सकते हैं ना कि letters or the colors we can use that is distinct from the other brands. So like this we can carry bags, that can be also a possibility for develop a unique store identity. मतलब एक आपके स्टोर का पहचान कैसे बनेगा. Yes सोनम. मैम कॉर्पोरेट आइडेंटिटी को फिर से बता दीजिए ना. हाँ, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी का मतलब है बेटा कि आपके स्टोर की क्या आइडेंटिटी बनेगी इन फ्रंट ऑफ द कस्टमर्स, राइट. लाइक अगर हम देखें तो अगर आपको मार्केट में compete करना है एग्जिस्टिंग रिटेल स्टोर से, so we have to follow the distinct or different store image what the other companies are following, right. We have to use ingredient of retail communication, यानी कि हमें कम्युनिकेशन करने का हमारे पास एक बेहतर तरीका होना चाहिए ताकि हम अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने स्टोर के बारे में कस्टमर को बता पाए. जैसे एग्जांपल के लिए आप लोगों ने देखा होगा कि लाइक द पैंटालून्स दे आर ऑलवेज यूजिंग अ sea green color and the white colors for showing their whole store, right. So but the other companies are not using the same type of thing. So हमें रिटेल कम्युनिकेशन करना बहुत जरूरी है. जैसे कि आपने देखा होगा कि बिजनेस कार्ड्स वगैरह आजकल के रिटेल स्टोर में अवेलेबल होते हैं. दे आर बेसिकली गिविंग यू द नंबर्स, दे आर गिविंग यू द बिजनेस कार्ड, दे आर कम्युनिकेटिंग, दे आर बेसिकली एडवर्टाइजिंग, ठीक है. एंड आप देखोगे कि बहुत प्रॉपरली उन्होंने बहुत ब्यूटीफुली जो है अपने बोर्ड्स, बिलबोर्ड्स और जो नाम लिखा हुआ है दैट इज शोइंग द यूनिक फीचर ऑफ योर स्टोर. तो आप इस तरीके से अपने स्टोर का इमेज बनाइए ताकि वो डिस्टिंक्ट भी हो और लोगों को याद भी रहे, दैट द पीपल आर एबल टू रिमेम्बर द स्टोर एज वेल. ठीक है, आई बात समझ में. क्या नाम है सोनम? यस मैम, थैंक यू. ठीक है, तो एडवर्टीजमेंट वेबसाइट पे, उसके अलावा ग्लो साइन वगैरह यू कैन यूज दैट. जैसे मैंने बताया कि नियॉन आजकल लाइटनिंग और ये सब चीजें यूज हो रही हैं. सो दीज आर द थिंग्स व्हिच वी नीड टू डेवलप फॉर द यूनिक स्टोर आइडेंटिटी. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द स्टोर इमेज, ठीक है, सो स्टोर इमेज में आपका वही होगा कि यहाँ पर आप दोनों चीजों को यूज करिएगा, टैंजिबल और इंटैंजिबल एट्रीब्यूट. टैंजिबल जो चीजें दिख सकती हैं, just wait for परेशान, एवरीथिंग जो भी चीजें होनी चाहिए, मतलब वट एवर यू आर ऑफरिंग द स्टोर दैट शुड बी फॉर. A store tends to develop a unique psychological and emotional proposition over a period of time. Why the psychological and emotional proposition? Psychological is something where the human are able to choose like which product is good, like human mind is working there. Emotional because once they are attached with the store, they are going to purchase the product according to the attachment. Like yes, we are purchasing all that from these store only, so we are going to purchase the product from this store. So emotional proposition when the people are less rational and they are basically using their heart when they are purchasing the product from the store. ठीक है. Psychological when they are using their mind when they are purchasing the product. तो स्टोर है ये आपके साइकोलॉजिकल और इमोशनल प्रोपोजिशन दोनों को बेसिकली इसमें दोनों की जरूरत है. बोथ थिंग्स आर रिक्वायर्ड. कुछ कस्टमर्स जो लॉयल होते हैं वो इसलिए लॉयल होते हैं बिकॉज रिफ्लेक्ट द वार्म एंड ट्रस्ट वर्दी एटमोस्फेयर. वंस दे अंडरस्टैंड कि द रिटेलर पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं, एटमोस्फेयर बहुत अच्छा है, तो ये कस्टमर की लॉयलिटी को इंक्रीज करता है. यू ऑलवेज वांट टू विजिट दैट रोड. लेकिन वही अगर आपका अनप्लीजेंट और कोल्ड एटमोस्फेयर होगा, जब वंस यू विल गो एंड नो वन इज रिस्पॉन्डिंग प्रॉपरली, देन दैट इज गोइंग टू डिटोरिएट द स्टोर इमेज. ठीक है,
So it is purely the customer perception. It is the perception, the thinking the customer has that define the store image. मतलब store का जो image है ना, ये store अपने तरफ से तो बनाता है, लेकिन ये यहाँ होता है, दिमाग में होता है customer के, इसका image कैसा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या क्या चीजें, पॉजिटिव स्टोर इमेज जो है दैट ऑलवेज पैट्रोनेज द कस्टमर एंड डेवलप द स्टोर लॉयलिटी। अगर पॉजिटिव इमेज है तो आपके हमेशा स्टोर की लॉयलिटी जो है वो इंक्रीज होगी, जो मैंने आप लोग को पहले भी बताया है। दे आर रिपीटेड सो मेनी पॉइंट्स सो मेनी टाइम्स, नो वन। लाइक स्टोर इमेज एट्रीब्यूट को देते हैं, यहाँ पर क्या क्या चीजें लिखा हुआ है। स्टोर इमेज एट्रीब्यूट, मर्केंडाइज, सर्विस, क्लाइंट, फिजिकल फैसिलिटीज एंड कन्वीनियंस। तो यहाँ पर आपका जो स्टोर इमेज एट्रीब्यूट है, मर्केंडाइज की क्या क्वालिटी है, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू मेक द स्टोर इमेज। अगर द क्वालिटी ऑफ द मर्केंडाइज इज नॉट प्रॉपर, deteriorating the image. Assortment, like how you arrange the product. If the arrangement is proper, clear and available, then that is also going to show the proper positive store image. Fashion, like what kind of product you are dealing with, what kind of product offering, that is according to the latest demand or trend or not. So according to, if you're talking about the fashion, like what kind of product you are offering. Latest product, that is also going to make the store image that whatever is in the market, जो भी अभी डिमांड में, ये इनके पास अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। गारंटी, like it is related with the return guarantee and the guarantee of the quality of the product. Like once अगर आपने कभी भी कोई कपड़ा खरीदा कोई भी और उससे कलर निकलने लगा, so that is showing that the quality of the product is very poor, right? The guarantee which is provided by the store or by the retailer to you, like once you will purchase this product, you will definitely happy by using this product. Okay, next one is pricing, like what price you are asking for when you are selling the product. अगर आपके पास बहुत महंगे products हैं, तो for the premium customer that is okay. Premium customers, they are not price sensitive, they are ready to pay the product at high price as well. But if the people are the price sensitive and in which area you basically started selling the product, that matters. Like आपके locality में किस type के people रहते हैं. If you are basically opening the store in the IS colony, definitely the people may, I'm not saying that everyone is like premium customer, but yes, maybe there is the people who are ready to purchase the product at high cost. What cost you are offering the product, that also going to make the store image. Second one is service. From the service, we are going to continue with continue in the next class. I guess these points are clear to all of you. Confusion था, समझ नहीं आया? Yes, ma'am, आ गया. आ गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. In next class ना मैं PDF से आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है? मैं PDF भेज भी दूंगी तुरंत से. PDF मैंने बना लिया है टाइप्स ऑफ स्टोर लेआउट का, तो स्टोर लेआउट हम लोग उसी से पढ़ लेंगे. गुड एटमोस्फेरिक वगैरह क्या है, ये मैं ना थोड़ा सा एक बार और अच्छे से कराऊंगी, ठीक है? मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बहुत हो सकता है. एनीवन हैव एनी डाउट? स्टोर लेआउट क्या होता है मैं बता देती हूँ, सुन लो. स्टोर लेआउट, इट इज अ आर्किटेक्चर ऑफ अ पर्टिकुलर स्टोर, ठीक है? स्टोर लेआउट क्या है? इट इज अ डिजाइनिंग, इट इज अ आर्किटेक्चर, लाइक हाउ where you are putting what props, that is store layout, ठीक है? Outlining of the store, the space of the store, ठीक है? Store designing, like how you are arranging the props, like rack, like desk, like hanger, like product. This is store designing. That can be the interior, like internally जब हम merchandise को manage कर रहे हैं, so that is the interior designing. Interior जब हम कोई सीलिंग में डिजाइन करवा रहे हैं, हम अपने props को कैसे रख रहे हैं, कैसे अरेंज कर रहे हैं, these are the interior. Exterior, that how we are showing our store, like boards, how we are placing, board को कैसे लगा रहे हैं, बाहर का लुक कैसा है आपके स्टोर का, आसपास हो सकता है आपने प्लांट लगवाया होगा या प्लांट्स होंगे, so that is in the exterior design of the store, ठीक है? Layout is the location or that is the architecture, the design of the store. Like 3 floor, first floor, second floor, like this is a layout, ठीक है? How you're putting the product, how you're designing your store, store design. Store image, like what the consumers are thinking about your store, like what we have, what kind of perception we have for that particular type of store, ठीक है? So that is store image. So retailers always want to
make the printed store image in mind of the customer, मतलब एक इमेज जो यहाँ दिमाग में बनाना है ना वो पॉजिटिवली बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है. So store image that is related with the consumer mind, that what kind of thinking they have for your store, what is the image they have. Like लोगों के लिए भी हमारे दिमाग में इमेज होता है ना कि ये पर्सन कैसा, like this. The same is with the retail store. The layout is the basically architect, interior design, the architect. Store designing, where how we are setting the product. Clear? समझ में आया तीनों? Yes, ma'am. Okay. See you all in the next class. Basics clear है? Objective क्या है और किस तरीके से store image बन सकता है? We are going to move toward that topic in the next class. ठीक है. और फिर हम लोग store layout के बारे में पढ़ेंगे कि grid layout कैसा होता है, wall layout कैसा होता है. Wall layout सारे के सारे products जो होंगे wall से connected होंगे. तो इस तरीके की सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, ठीक है? ओके मैम.